Hello everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on for May 22, and if they are not, we will try to bring the studies back on track with effect from 15th February, right? So this is a video, this is a discussion for a study plan of 3 months for a CA final, and we will be discussing both the cases, so both groups as well as single groups, right? So before coming to the discussion, two quick important updates. Most probably by next weekend, we would be closing the registrations for our May 22 CA Final Law batch. So you can consider registering if interested, and you can log on to www.swalimbeclasses.com and register for the batch with hard copy books. Obviously with ebooks it would be available, but we have limited set of hard copy books. So for that, you if interested, you can consider registering today. And secondly, with respect to our Telegram channel, so daily we are posting MCQs, audio notes, except these 2-3 days, because results aane ke baad we will be starting out again, and first two important chapters of directors are completed. So daily MCQs are posted, audio notes are posted for chapter wise coverage, and on every weekend I try to touch various other topics that I feel are important for CA students apart from academics. Those also are I'm trying to touch upon those topics, that is only on weekends. So if you're a CA final student, you would be benefited from that channel. You can consider joining that as well. The link is available in the description, right? So coming to our main discussion today, we will keep the discussion extremely to the point. And first of all, if you have a study plan ready, then you can follow that particular plan, and you can watch this video only to gain certain pointers which you feel, okay, I might be missing out on those points, right? Apart from that, please stick to your plan. And secondly, primary target for this particular discussion is those students who are giving both groups. Reason is very simple, that comparatively, I'm not saying giving 4 subjects is easy, but comparatively it is easier in relation to students who are giving both groups and handling 8 subjects in 3 months with effective time, with effective duration to each and every subject becomes a bit of a issue. So that is something which we will try to resolve from this video, right? So this PDF is available in the description. You can download it later. First understand all those points, and then you will have to make certain amendments to this particular plan to match it as per your personal level of preparation, as per the techniques and as per the methods which are best suitable to you, right? You don't have to take this plan and apply it to yourself in a 100% manner. You will have to make certain amendments. That is very well understood. Let's start with our discussion. Time stamps में आपको मिल जाएगा कि single groups कहाँ से start हो रहा है. Primarily this is for both groups. Okay, so let's start. CA final 3 months study plan for May 22. So we will be keeping एक idea लेके कि 4-5 days it will take for all the students to completely रिव्यू दिस वीडियो, एंड टिल देन रिजल्ट्स भी आ चुके होंगे 10th इवनिंग अप्रोक्सीमेटली 11 मॉर्निंग तक. आई थिंक 10 तक आ जाने चाहिए रिजल्ट्स. सो दैट विल दो स्टूडेंट्स विल ऑल्सो हैव सफिशिएंट टाइम जो अनफॉर्चुनेटली क्लियर ना कर पाए. सो फॉर दोज ऑल्सो May 22 के लिए ये स्टडी प्लान एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम 15th February. सो आई हैव टेकन दैट टाइम फ्रेम. ओके, सो 15 February से 13th May का हमारा स्टडी प्लान रहेगा फर्स्ट बोथ ग्रुप्स के लिए. So what are the dates of your exams and what are the subjects that we need to deal with? So FR का 14 को exam है. After that SFM, that is your 17. So you have 2 days for SFM. Then you have your audit exam on 19th, law 21st, SCMP 23rd, elective 25th, DT 27th and IDT 29th, right? So elective I am not going to discuss each and every subject in detail because it is not possible. Secondly, it is an open book exam and many students take kind of a collective batches for the main subject and the elective subject. So it creates a lot of permutation combination, like various other combinations can be made. So not possible to discuss each and every part, right? So elective I will be keeping in general. There are 9 important guidelines that you need to understand before we start with the discussion. That I have to make a simple assumption that the practical subjects are done at least once, at least twice, because what I am saying, what do I mean when I say done? When I say this word done, it means during the classes you know what the concepts were discussed, and after that you can say kind of a self study or during your homework revision or whatever it is, you know the concepts, right? Because if you are attempting both groups and if we are 3 months away from the exam, it is not possible that we have DT left, FR left. I'm not saying that is not possible to clear, but it is not possible for me to take such assumptions since majority students must be through their practical subjects. Okay, it is possible that a theory subject or maybe elective subject may be pending. तो law audit में ये दिक्कत आती है या elective रहता है,
और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में से रिवीजन रहती है. दिस इज द काइंड ऑफ स्टेज फ्रॉम विच वी विल बिल्ड द स्टडी प्लान. ओके, in the last 3 months our entire focus is going to be on markings. So basically जब आप पढ़ते हो, whenever you complete the classes from any faculty or from self, there are some markings that you make from which you gain an understanding that okay, out of this 100% syllabus, maybe this 60-65% is quite important, maybe this 60-65% is tested more, maybe out of the balance you can say 35-40% this is okay kind of a concept, and this is maybe not very important concept, right? So we have to focus on the markings approach now, because it is not possible that we cover 100% syllabus time and again in every revision, right? You have seen a funnel. I always try to bring this approach in study plan. Like a funnel, our revision and our coverage should reduce gradually as we go into our revisions approach, right? So your revision would reduce, your coverage would reduce, and it would be focused towards important marked areas, right? Okay. Next, I want you all the students who are giving both groups to have a simple acceptance in your mind. And sir, what is that acceptance? That you would never, please mark this point, you would never feel 100% comfortable, and it's not possible to revise 100% syllabus every time. So 2 points, that you will never feel 100% comfortable that okay, I'm done with the 8 subjects, I'm comfortable with 8 subjects, I'm able to retain all the subjects, all the portion, 100% syllabus. It is not possible because CA फाइनल सिलेबस है, कोई रैंकर का भी ऐसा कभी भी टाइम नहीं आता है, इसीलिए हमारे पासिंग मार्क्स 100 नहीं है. वी हैव टू मैनेज इट वेल, राइट? एंड सेकंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिवाइज एवरीथिंग अगेन एंड अगेन. I interacted with one student yesterday and he was talking to me, he was expressing कि सर जब भी दूसरी बार पढ़ने बैठता हूँ पुराना वाला लगता है एक बार पढ़ने की कोशिश करूँ. In that he invests around 1 or 2 hours, 1 to 2 hours more than the planned study. और उससे होता क्या है, जैसे जैसे the syllabus would be increasing, the coverage would be increasing, next time it is not possible to revise everything again and again in 1 hour. Then he started investing more and more time. और उसके बाद होगा क्या, आपका कवरेज हो ही नहीं पाएगा इफेक्टिवली, क्योंकि आप इतना ज्यादा टाइम लगाओगे एक सब्जेक्ट पे, राइट? सो इट इज नॉट पॉसिबल, बट the good thing is it is absolutely okay. No ranker does this. Even if someone is saying that, let me be very honest, मैंने भी एंड तक सारा 100% सिलेबस रिवाइज नहीं करता रहा. क्लियर है? तो ये इस चीज का एक्सेप्टेंस ले आओ और इससे आपका आधा बर्डन कम हो जाएगा. ठीक है? इससे डरना नहीं है कि मैं बोथ ग्रुप्स दे नहीं सकता. ये मत सोचना कि मैं नहीं कर पा रहा तो मैं ये कर नहीं सकता, राइट? ये सबके साथ होता है. जो बोथ ग्रुप्स में आते हैं जनरली दे हैव अ थिंग इन द बैक ऑफ द माइंड कि सर अब रैंक लानी है, एंड दे ट्राई टू इक्वेट ईच एंड एवरीथिंग विद अ रैंक. कि अरे गलती हो गई, ना सर मैं रैंक नहीं ला पाऊंगा, अरे सर ये चैप्टर मुश्किल लग रहा है, डीटी मुश्किल लग रहा है, मे बी आई वोंट बी एबल टू गेट अ रैंक. प्लीज डोंट थिंक ऑफ अ रैंक ऑन अ डे टू डे बेसिस. इट विल रूइन योर डेली प्रिपरेशंस. इसके लिए सिर्फ आपको एक बार प्लानिंग अच्छे से करनी है, और रैंक एक अपने आप एक कहते हैं ना, अपने आप इंपैक्ट बन के आएगा. पहले आपको प्राइमरीली यू नीड टू एम ऑन ओनली 2 थिंग्स, 100% पेपर कंप्लीशन, और जो करोगे वो सही करना है. सब कुछ सही रहा, ये दोनों चीजें अगर आपने अच्छे से अचीव करी, देन यू विल गेट अ रैंक. इट विल बी अ बाय प्रोडक्ट, नॉट द मेन प्रोडक्ट. मेन प्रोडक्ट इज बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, right? This will be a byproduct depending upon various factors that may or may not be in your hands. ठीक है? जो अपने कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो प्लीज डेली प्रेशर नहीं लेना. नेक्स्ट, प्लीज डो नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट. ये मैंने ऑलरेडी इसके साथ लिंक कर दिया है. सब कुछ बार बार अच्छे से नहीं करना है, थोड़ा सा आपको प्रोग्रेस के ऊपर भी ध्यान देना है कि भैया टाइमलाइंस के हिसाब से आगे बढ़ना है. नेक्स्ट, डबल माइंड चलता है काफी स्टूडेंट्स का कि सर एक ही ग्रुप दे, क्या हो नहीं रहा है. सी here obviously I cannot comment because I don't know preparation level of you individually. Personally I don't know, personal mentoring मैं भी करता भी नहीं हूं, तो इसलिए I am not going to comment on this. But if you feel, बहुत स्टूडेंट्स की गलती होती है कि they give both groups for wrong reasons. सेट ऑफ हो जाएगा, पेरेंटल प्रेशर है, मेरे दोस्त दोनों ग्रुप दे रहे हैं, वो सब अगर रीजंस की वजह से दे रहे हो तो प्लीज बिवेयर एंड अंडरस्टैंड वेदर यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड और नॉट. और अगर आपको लग रहा है कि सर डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो गिव योर सेल्फ अ स्पेसिफिक टाइमलाइन कि भैया जैसे मार्च एंड या जो भी है एग्जाम फॉर्म व्हाटएवर इट इज, वहां तक मैं अपना वेट करूंगा. उस टाइम मैं एक डिसीजन ले लूंगा कि ठीक है अब इस वाले के बाद आई थिंक आई एम प्रिपेयर्ड फॉर बोथ ग्रुप्स एंड आई कैन पुल इट ऑफ. अदरवाइज चुपचाप एक ग्रुप पे आके अच्छे से क्लियर करना है. प्लीज अंडरस्टैंड, दोनों ग्रुप किसी को दिखाने के लिए हम नहीं देने वाले हैं. इट कैन रूइन आवर अटेम्प्ट्स थिंग.
क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं होगा, इतना इजी नहीं है कि अटेम्प्ट नहीं हुआ तो दे देंगे अगली बार। इट क्रिएट्स अ मेंटल इंपैक्ट, ठीक है, वो जो एडवर्सली इंपैक्ट आता है तो उसको भी अपने को एक डील करके दोबारा पढ़ना, इट्स नॉट इजी। तो प्लीज एंश्योर यू आर गिविंग बोथ ग्रुप्स फॉर द राइट रीजंस। राइट रीजंस है तो बिना डरे आगे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन ले लेना, उससे आगे नहीं सोचना है, एंड देयर इज नो परफेक्ट डिसीजन। जो ऐसा दिल को लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूं तो कर लो, वो हिसाब से आपको बढ़ना है आगे, राइट। नेक्स्ट, ये चीज मैंने काफी स्टूडेंट्स को बताई थी, स्टडी प्लान्स में इतनी ज्यादा इनकॉर्पोरेट अभी तक नहीं करी थी, इसलिए इस वाले में आई एम गिविंग इट आउट दैट यू कैन प्रैक्टिस अर्लियर पेपर्स और अर्लियर आरटीपीज बाय सॉल्विंग 1 or 2 क्वेश्चंस एवरी डे, एंड दिस विल बी मोर एप्लीकेबल फॉर दोज सब्जेक्ट्स वेयर देर आर नॉट मच ऑफ एनी अमेंडमेंट्स इशू, राइट। फॉर एग्जाम्पल SCMP हो गया, ठीक है, SCMP हो गया, या कोई इलेक्टिव के आपके सब्जेक्ट हो गए, या एनीथिंग लाइक दैट, जैसे लॉ में कंपैरेटिवली अमेंडमेंट्स आ जाती है, DT में अमेंडमेंट्स आ जाती है, FR कर सकते हो, SFM कर सकते हो। What I used to do, please try to understand this concept, very very important। मैं ऐसे, जैसे कॉस्टिंग हमारे टाइम पे मेरा ओल्ड कोर्स था, तो कॉस्टिंग के टाइम मैं क्या करता था, जैसे प्रिंट निकलवा लिए, ठीक है, और पेपर्स के 2 क्वेश्चन सोने से पहले 5-10 मिनट में 2 सवाल मुझे सॉल्व करने हैं। आंसर आता है, आपको लगेगा सर 2 सवाल से क्या होने वाला है, बट इफ आई डू दिस फॉर 1 month, मे बी फॉर 2 months, मैं 8-10 पेपर निकाल लेता था। तो वो प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बन जाती है ना ऐसे सब्जेक्ट्स की, कि जिसके अंदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड मे बी प्रेडिक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि यार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे डील कर लूंगा, right? And this helps immensely because these are small and consistent efforts over a long period of time that will translate into tremendous results, ठीक है। तो ये वाली चीज आप कर सकते हो, totally in your hands। और इसको मैं बताऊंगा नीचे, कीप इन टच स्ट्रेटेजी भी मैं इसको कहता हूं, वो भी मैं आपको इंटीग्रेट करके बताऊंगा इसमें, कीप इन टच स्ट्रेटेजी बताऊंगा अभी आपको नीचे, you will get a better understanding of it। Next, I have not given any breaks, I have not given anything kind of a off, kind of जैसे कहते हैं ना off ले लो, and because I feel that breaks should be completely unplanned and as per need, please do not take a break because someone is saying हफ्ते में 1 दिन ऑफ चाहिए भैया, CA फाइनल के लिए we are preparing, we cannot afford to take 1 complete single day off। It might be the case that you are a kind of a person who needs 1 break or maybe half a day break in 15 days, maybe you are kind of a person or student who needs maybe half day break in 1 week, right? So totally depends on how you feel and how your daily studies are going on, so please don't ask anyone and do as per what deems fit to you and what you are comfortable। नेक्स्ट, डेली स्टडी टारगेट शुड बी 8 to 10 hours, +- 2 hours कर सकते हो, और कोई प्रेशर नहीं, अगर लग रहा है प्रिपेयर्ड हो तो भैया 6 घंटे भी पढ़ लो, नहीं प्रिपेयर्ड तो भैया 13-14 घंटे भी लगाने के लिए रेडी हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ये करियर बनेगा अपना। तो प्लीज डोंट कॉम्प्रोमाइज, बी सेल्फ ऑब्सेस्ड इन दिस मैटर, कि पूरा मेहनत से भी पढ़ाई करनी है, 3 महीने रहते हैं, CA बनने के बाद जिंदगी बदलने वाली है, क्लियर। तो थोड़ा सा एक बेसिक फाउंडेशन मिल गया। आई नो आई हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस ऑल्सो, बट आई फील ऑल दीज पॉइंट्स वर इंपॉर्टेंट। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्विकली आते हैं हमारे कवरेज के ऊपर, डेट वाइज, पीरियड वाइज, वेरी वेरी डिटेल्ड स्टडी प्लान। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। 15 फरवरी से 28 फरवरी यू हैव 14 डेज। 14 डेज में, अच्छा एक और चीज छोटी सी, प्लीज 1 minute, आई एम गिविंग यू क्वाइट एम्बिशियस टाइमलाइंस, ठीक है, +- 2-3 दिन, 1 दिन ऊपर नीचे होएगा, तो आपको लगेगा कि सर ने बहुत कम टाइमलाइन दी है, इस चीज को फॉलो करने की कोशिश करो। इफ यू आर एबल टू मीट दोस, वेल एंड गुड, नहीं तो काफी हद तक एक एम्बिशियस तरीके से यू विल बी एबल टू कवर द कोर्स, और उसके बाद 1-2 दिन ऊपर लगने दो, कोई इशू नहीं है, क्लियर है ना। तो ठीक है, तो आगे चलते हैं। 14 डेज का टाइम पीरियड दे रहे हैं, दैट इज आपका फरवरी का महीना जो आधा बचा है, पूरा नहीं क्योंकि 28 का ही महीना है। इसके अंदर यू हैव टू फोकस ऑन 3 सब्जेक्ट्स, FR, SFM एंड ऑडिट लॉ। ये दोनों नहीं करने, इसमें से एक करना है। इसमें से एक कौन सा करना है, विच इज कंपैरेटिवली लेस प्रिपेयर्ड, बिकॉज आई हैव ऑफन सीन दैट स्टूडेंट्स का ऑडिट लॉ में से एक में प्रॉब्लम रहती है और मेजॉरिटी तरीके से लॉ में रहती है। सो जस्ट ए क्विक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉ के लिए यू कैन कंसिडर आवर बैच बिकॉज यू विल गेट द कंप्लीट कवरेज along with important questions in 73 hours, ठीक है, इंस्टेंट एक्सेस मिलेगा, तो यू कैन कंसिडर दैट, डेमो भी आप चेक कर सकते हो पहले। तो ऑडिट लॉ में से जो कम प्रिपेयर्ड है वो आपको उठाना है। अब करना क्या, ध्यान से समझो, डेली FR आपको सुबह 3 घंटे करनी है, FR आपको सुबह 3 घंटे करनी है, और डेली 2 घंटे SFM करनी है शाम में, ठीक है, दिस विल बी इन द इवनिंग, सो मॉर्निंग एंड इवनिंग, clear। SFM obviously you can increase to 3 hours also depending upon how much markings and clear cut concise way में आपके पास सिलेबस कितना अवेलेबल है आज।
And out of audit and law, whichever is left, you have to give 4 to 6 hours every day because we are going to try to cover that particular weak subject जो ग्रुप 1 में जनरली इन दोनों में से रहता है. मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी लॉ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो हमारा ऊपर के 3 सब्जेक्ट्स हुए 1-2 घंटे ऊपर नीचे करके, यू हैव टू गिव 1 hour विथ दिस स्ट्रेटेजी नोन एज कीप इन टच स्ट्रेटेजी. सर अब समझा भी दो, ये क्या बोल रहे हो, ये क्या नाम दिया है, कोई फैंसी सा नाम दिया है क्या? आंसर इज नो, कोई फैंसी नाम नहीं है. दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच दैट आई हैड फॉलोड फॉर माई एग्जाम्स, दैट आई हैव ऑलवेज प्रीच्ड अबाउट इन माई प्रीवियस स्टडी प्लानिंग वीडियोस, एंड फीडबैक से पता चला कि येस इट इज हेल्पिंग. तो इसमें क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल इस वाले में आप 3 सब्जेक्ट्स उठा रहे हो, 2 या 3 सब्जेक्ट्स उठाते हैं लोग. आई हैव प्रिपेयर्ड अ प्लान विद दिस काइंड ऑफ अप्रोच. तो इन 3 सब्जेक्ट्स के सिवाय स्टूडेंट को लग रहा है यार डीटी की क्लास खत्म हुई थी, उसमें ना एक एनआर टैक्सेशन है और एक ये पार्ट है, ये ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मैं हमेशा डरता हूँ, पीजीबीपी में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ. तो आपको क्या करना है, 1 घंटे में ना ऐसे 2-3 सब्जेक्ट उठा लेने हैं. इसको मैं पढ़ाई नहीं मानूंगा, इसको मैं पढ़ाई नहीं मान रहा. मैं क्या करूंगा, कुछ अपने आप को टेस्ट नहीं करना. यू डोंट हैव टू टेस्ट योरसेल्फ. डीटी की बुक पढ़ी, वो एनआर टैक्सेशन का बस हल्का सा एक बार रिवाइज कर लिया, 15 मिनट में एक आध क्वेश्चन कर लिया, बस हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, इसको पढ़ाई नहीं माननी. ये बस सोते वक्त एक घंटे में कर लिया. या फिर जैसे मैं आपको ये वाली चीज बता रहा था, इसमें से कोई, ये तो ऑब्वियसली अभी मैंने एग्जांपल ग्रुप 1 के लिए, जैसे एससीएमपी का ले सकते हो आप, तो एक आध बस 15 मिनट में 2-3 क्वेश्चन कर लिए. सर इससे होगा क्या, इट विल गिव यू इमेंस साइकोलॉजिकल एडवांटेज दैट ऐसा नहीं हो रहा जनरली आपके मुंह से निकलता है ना, सर पुराने सब्जेक्ट भूल रहा हूं. नहीं होएगा, इस चीज से नहीं होएगा, क्योंकि ये पढ़ाई नहीं है. पढ़ाई ऊपर के 3 सब्जेक्ट है, ये सिर्फ कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगानी है बैलेंस सब्जेक्ट्स में. बिलीव मी व्हेन आई से, मैं 2 या 3 सब्जेक्ट को छोड़ के 3-4 सब्जेक्ट्स 15-15 मिनट के भी करता था. आपको लगेगा सर मतलब आप दिन में 7 सब्जेक्ट कर रहे थे. आंसर इज नो, आई वाज डूइंग ओनली 3 सब्जेक्ट्स, बट 4 सब्जेक्ट्स आई वाज कीपिंग इन टच, क्योंकि मेरे माइंड ने मुझे बार बार यही बोला कि यार एंड में जाके ये नहीं लगेगा कि पता नहीं कौन से सब्जेक्ट छोड़ दिए. ठीक है, तो आप ही के स्टेज से गया हूं, आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेज वेर यू फील दैट एंग्जाइटी टुवर्ड्स द एंडिंग डेज, एंड ये चीज आपको इमेंसली हेल्प करेगी. प्लीज प्लीज ट्रस्ट मी ऑन दैट एंड फॉलो दिस स्ट्रेटेजी. क्लियर. आगे डिलीवरेबल्स, अपने आपको डिलीवरेबल देने हैं, घर पे किसी को सुनाना है, घर पे किसी को बताओ कि डैड, मॉम, ब्रदर, भाई बहन, किसी को भी कि ये मेरा डिलीवरेबल था. जैसे ऑफिस में आपको देना पड़ता है, क्या सर के हिसाब से मैंने जो डिलीवरेबल आपको दिया, तो आपको बताना है कि 28 फरवरी को आपने एफआर और एसएफएम की रिवीजन हुई या नहीं हुई. यस सर. ऑडिट या लॉ में से जो वीकर सब्जेक्ट था विच वॉज लैकिंग, क्या वो कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, क्लियर. अब अगले 5 दिन 1 मार्च से 5 मार्च 5 डेज में आपको ग्रुप 1 के सब्जेक्ट्स छेड़ने हैं. कैसे छेड़ने हैं समझो. अदर सब्जेक्ट आउट ऑफ ऑडिट एंड लॉ, ऊपर वाले में हमने उसको पकड़ा जो थोड़ा सा वीक था. अब 5 दिन में उसको पकड़ेंगे जो कंपैरेटिवली हमारा हो रखा है, विच इज कंपैरेटिवली मोर प्रिपेयर्ड. यू हैव टू गिव 4 to 5 hours एवरी डे फॉर 5 days. तो 15 अराउंड 5 4 20-25 आवर्स में आपको उसको रिवाइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपका वो कंपैरेटिवली प्रिपेयर्ड है. सो यू माइट टेक लेस डेज. ठीक है, उसके साथ दिन के 4 घंटे ये हो गया. उसके साथ 4 घंटे दिन में आपको वॉट एवर इट इज लेफ्ट आउट ऑफ 28 फरवरी डिलीवरेबल, मतलब एफआर, एसएफएम और मेरा कौन सा, हाँ जो हमारा ऑडिट या लॉ में से कंपैरेटिवली लैक कर रहा था सब्जेक्ट, उनमें से अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं यार रह नहीं पाया, मतलब 28 फेब में आई कुडंट कंप्लीट इट, यू कैन कंप्लीट इन दीज 5 days. सर अगर 28 फेब को मेरा सारा हो जाता है तो कोई बात नहीं, इन 5 दिनों में आप ये वाला सब्जेक्ट बढ़ाओ, 5 घंटे कर लो, 6 घंटे कर लो, रिवीजन कर लो एक और, कोई दिक्कत नहीं है. अपार्ट फ्रॉम दैट 1 hour कीप इन टच स्ट्रेटेजी, डीटी ले सकते हो, ऊपर वाले सब्जेक्ट्स ले सकते हो, वॉट एवर इट इज. क्लियर. तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं ग्रुप 1 तो सर संभल रहा है. सर 5 मार्च तक ग्रुप 1 तो हाथ में आ रहा है इस अगले 15 + 5 20-22 दिन में. यस, ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू फील कि सर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आई एम गिविंग यू 3 days, 6th, 7th and 8th March. 6th, 7th and 8th March. I am giving you a buffer to complete whatever is left out of group 1's 4 subjects that we have completed till 5th March. Till 5th March. जो नहीं हो पाए 3 दिन लगा के 10-10 घंटे 30 घंटे दे रहा हूं, 30 घंटे में वो सब्जेक्ट के वो पार्ट खत्म करो. लग रहा है कि नहीं लॉ में कुछ नहीं हुआ, खत्म करो, तो 3 दिन आपको और मिल गए. राइट नाउ फाइनल डिलीवरेबल आई कैन से ऑन 8th March इज योर ग्रुप 1 इज डन. नाउ यू हैव एन ऑप्शन कि इसी टाइम आप कुछ 1 दिन 2 दिन ऊपर नीचे करके दिन में 2 पेपर दे सकते हो. आप सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, यू कैन गिव इट आउट. तो अगर आपको 2 दिन देके
ग्रुप 1 के एक एक पेपर भी देना है तो दे सकते हो। तो इसमें मैं ऑप्शन डाल रहा हूं आपको, आई एम गिविंग यू एन ऑप्शन दैट यू कैन अटेम्प्ट 1 पेपर ईच। तो उसमें 2 दिन का ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है आपको 3 दिन ना जरूरत पड़े और आप 2 दिन इसमें इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। तो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर, दैट इज ऑप्शनल, मैंने अभी इसके अंदर स्पेशली टाइमलाइन नहीं दी है। नाउ वी हैव टू जंप टू ग्रुप 2। पहले यहाँ पे थोड़ी सी खुशी बना ले हम, ठीक है। ग्रुप 1 हो गया और पॉजिटिव फील करो यार, यू कैनॉट डू एनीथिंग विच यू कैनॉट इमेजिन, राइट। सो फर्स्ट इट नीड्स टू बी हियर, देन इट विल बी इन द एक्शंस, राइट। तो ग्रुप 1 हमारा हो गया। आगे चलते सर, 9 मार्च से 20 मार्च जो 12 दिन मिलेंगे उस पे 3 सब्जेक्ट्स को हमें अटैक करना है और बिल्कुल अच्छे से करना है। डीटी, एससीएमपी एंड इलेक्टिव। इलेक्टिव थोड़ा सा हल्का है, डीटी थोड़ा सा भारी है, बैलेंस आउट हो जाएगा। एससीएमपी मॉडरेट है। सो वी आर गोइंग टू फोकस 4 आवर्स डीटी मॉर्निंग में, इलेक्टिव दोपहर में 1.5 आवर्स। ओपन बुक है, रिवाइज होके कंसेप्ट समझ के बुक लेके जानी है, अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, तो इसके अंदर ज्यादा मेहनत नहीं लगती। तो 1.5 घंटा आपको देना है और एससीएमपी 3 घंटा। तो ये 7 + 1.5 8.5 आवर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट 1.5 आवर्स कीप इन टच स्ट्रेटेजी दैट आई वुड एडवाइस फॉर ग्रुप 1। उसमें आप एफआर के कंसेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, कुछ छोटा मोटा एसएफएम देख सकते हो, या डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड। तो मेन फोकस हमारा इसमें इन 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर रहेगा। अब आपको कोशिश करनी है 12 दिन के एंड में आप इस चीज को खत्म कर पाओ। आप प्लीज इस चीज को खत्म कर पाओ एंड ट्राई। ये एम्बिशियस है लेकिन एम करना है कि दैट योर डिलीवरेबल ऑन 20th मार्च should be that my DT is revised, my SCMP is revised, elective revised. Out of this 99.9% आप ये तो कर ही लोगे, ये भी शायद कर लोगे, इसमें दिक्कत आएगी। सर फिर हमें आपने बफर दिया या नहीं दिया? दिया। अगले दिन आ जाओ। 21 मार्च से 25 मार्च आपको 5 दिन का समय दे रहे हैं। इन दीज 5 days you have to cover whatever it is left out of above 3 subjects which will most probably be DT and SCMP. तो इसके अंदर मैंने बफर आपको comparatively I have given it more as compared to group 1. I am giving you 5 days because DT is a heavy weight, right? तो उसमें you have to finish these 3 subjects. Clear? तो मेरा final deliverable at the end of 25th March again यही वाला होगा. Okay? I hope this is clear. After that I am giving you 11 days 26th March to 5th April in which my IDT will be main focus and the reason I am taking IDT towards थोड़ा सा end. आप IDT को ना पुराने दिनों में अगर आपका हो रखा है, क्लास हो रखी है, एक बार हो रखा है, तो पुराने दिनों में जो इसके ऊपर वाले हमने शेड्यूल डिस्कस किया, आप कीप इन टच स्ट्रेटेजी में उसको उठा सकते हो कि चलो जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवाइज हो गया या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। 15-20 मिनट्स डेली देखिए। नाउ इन दीज 11 days माय आईडीटी विल बी द मेन फोकस, हेंस आई हैव टू गिव 4 to 5 hours टू आईडीटी एंड देन 2 घंटे देने हैं दिन के एनी वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच यू फील रिक्वायर्स वर्क। हो सकता है डीटी हो सकता है एफआरओ, कुछ भी हो सकता है। उसको छोड़ के 2 घंटे कीप इन टच स्ट्रेटेजी, इसमें 3-4 सब्जेक्ट 15-15 मिनट 20-20 मिनट उठा के रिवाइज कर लेना, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट पार्ट। कोई पढ़ाई नहीं करनी कीप इन टच स्ट्रेटेजी में, सिर्फ रिवाइज करना है, माइंड को शांत करना है, बच्चे की तरह रखना है कि हाँ भाई देख तू भूल नहीं रहा है। क्लियर? तो मेरा काइंड ऑफ 5th अप्रैल में, मेरा एंड ऑफ 5th अप्रैल में मैं कह सकता हूं ग्रुप 2 भी मेरा हो चुका है। ग्रुप 2 भी मेरा हो चुका है। लेकिन सर ग्रुप 2 में क्या पता कोई सब्जेक्ट रह जाए, आईडीटी में आपने 11 दिन दिए, क्या पता मुझे 2-3 दिन और चाहिए। हेंस आई एम गिविंग यू अ बफर फ्रॉम 6th April to 10th April of 5 days. Of 5 days, any subject or subjects out of 8 you need to practice and you feel it is weak. तो इसमें आप आईडीटी डीटी उठा सकते हो, whatever it is. So again 5 days buffer is given, right? अच्छा, इसी के टाइम इसी पीरियड में अगेन ऑप्शनल बेसिस पे आप एक एक पेपर उठा सकते हो फॉर ग्रुप 2। फॉर ग्रुप 2 2 दिन लगेंगे, सुबह एक शाम को एक पेपर, एक एक सब्जेक्ट, एंड सिमिलरली द नेक्स्ट डे। So it will take 2 days. Again an optional kind of a thing depending upon if you have that much time or not, because इसको छोड़ के 1 paper I am giving you time in the below schedule. ठीक है। Now what is the deliverable on 10th April? That my both groups are revised at least once properly. Apart from the classes, और एक बार जो आपने रिवीजन थोड़ा बहुत सेल्फ स्टडी करी होगी, उसके बाद एक रिवीजन मेरी प्रॉपर एक और हो चुकी है 10 अप्रैल तक। ठीक है, 14 मई से पेपर है, हम 10 अप्रैल पे है, उसके बीच में देखते क्या करना है। 11 अप्रैल from 11th April to 30th April, that is the end of the month, you would be having 20 days in hand. In 20 days, except for first 2 subjects. Sir, why are you excluding first 2 subjects? In my opinion, your FR paper should go in as excellent manner as possible because it will set the entire tone for your both groups. Second, SFM और FR दोनों ही प्रैक्टिकल है। ग्रुप 1 की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं कंपेयर टू अदर जो बहुत ही सिमिलर है थ्योरी। इसीलिए आई ट्राई टू से कि भैया FR SFM को भी छोड़ो, उसमें से बता दो आपको क्या करना है। इन 20 दिनों में FR SFM डेली आपको 2 घंटे करने हैं।
2 hours ईच नहीं बोल रहा, टोटल कह रहा हूं, 1 घंटा भी कर सकते हो, वही मार्क्ड पोर्शंस पे ध्यान देना है और मार्क्ड कंसेप्ट्स पे ध्यान देना है। तो सिलेक्टिव स्टडी करनी है एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई कि उसी के एंड में एक पेपर भी उठा लेना है। तो ये मे बी इट विल बी योर फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर डिपेंडिंग अपॉन योर इफ यू आर पिकिंग पेपर्स अबव और नॉट। क्लियर? इसको छोड़ के ये तो सुबह 2 घंटे गए मेरे सिर्फ, बाकी के दिन के 8-10 घंटे क्या करना है इन 20 दिनों में? आपको फॉर एवरी बैलेंस सब्जेक्ट यू हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट एंड यू हैव टू अटेम्प्ट वन पेपर, प्रॉपर टाइम बेस्ड पेपर इन 3 days. Sir, why are you giving us only 3 days? It will give you kind of a trial practice that what is going to happen during those exam days in which you have to revise the syllabus in 1.5 days. तो यहाँ पे मैं आपको डबल ही दे रहा हूँ, 3 दिन दे रहा हूँ, ताकि एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आपकी वीकनेसेस है। यू कैन अकॉर्डिंगली एड्रेस दोज वीकनेसेस एंड इट विल गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू हैंडल सिलेबस इन 1.5 days. That is the whole and sole aim of this kind of a exercise. So out of the balance 6 subjects, you have to give 3 days to each subject at once. सुबह 2 घंटे FRSFM के बाद एक ही सब्जेक्ट उठाना है दिन में, 3 दिन देने हैं उसको. You have to revise it and you have to give one paper at the end of the 3rd day. So this will take 6 into 3, 18 days. Still you have 20 days, 2 days buffer. Clear? Clear ये चीज? So what is the deliverable at the end of April? इन दोनों के FRSFM में भी मैंने आपको एक पेपर बोल दिया है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एटलीस्ट 1 पेपर सारे सब्जेक्ट के हो रहे हैं. What is the deliverable on 30th April? That my all 8 subjects are revised properly second time along with 1 solved paper minimum. Might be the case that you have solved 2 papers. उसके बाद महीना आ रहा है हमारा एग्जाम का, बिल्कुल नहीं डरना है. 1 मई से 8 मई जो आपको 8 डेज मिलेंगे, they are completely a buffer to practice whatever areas you feel need attention based on above paper based revision. I would advise you not to pick FRSFM because those will be picked in the last 5 days. So focus on generally this will be DT, Law and IDT. ये मैंने एक्सपीरियंस से देखा है कि DT, IDT, Law को आप पकड़ोगे. बस उस 8 दिनों के बाद कुछ पेपर कुछ नहीं करना, ठीक है? मई मंथ में, दिस इज माय एडवाइस, मई मंथ में कोई पेपर मत करना, कुछ मत करना, ये सब, ठीक है? 9th से 13th में आपका 14 से एग्जाम है. आपका 14 से जो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उससे पहले 13 तक का 5 दिन आपको सिर्फ FRSFM करना है. लॉ या DT कभी कभार लोग ऐसे कि चलो DT का कुछ देख लेते, DT नहीं, खासकर लॉ ही होता है, वो भी जरूरत पड़े तो, वरना छोड़ देना. FRSFM गिव योर एज बेस्ट एज पॉसिबल. FRSFM में 90 प्लस भी आ सकते हैं भाई, और इससे आपका ग्रुप 1 तो पूरा हाथ में आ जाएगा. एट द एंड ऑफ द डे इफ समथिंग गोज रॉन्ग, टच वुड, कुछ भी गलत ना हो आपके साथ, लेकिन कुछ भी गलत हुआ, कुछ भी अनएक्सपेक्टेड पेपर आए, तो एटलीस्ट ग्रुप 1 संभल जाएगा इन दोनों पेपर से. क्लियर? तो लास्ट में हम यही एक करेंगे कि FRSFM को पकड़ेंगे. So this was all for our both group students and you can please leave the video. Now I am going to discuss about single groups and I hope कि इसने आपको हेल्प किया हो. Please understand one thing, कोई टेंशन मत लो, एक रैशनल डिसीजन लेना है. अननेसेसरी 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगाने डिसीजन में. लग रहा है बोथ ग्रुप्स पुल ऑफ हो सकते हैं तो बिल्कुल मेहनत करनी है. 100% कंफर्ट कहीं पे भी नहीं आएगा और रैंक के लिए ही काम करना है और आप करोगे. राइट? देयर विल बी अ नीड टू मेक सर्टेन ट्विक्स, इसके अंदर चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी, विच इज एब्सोल्युटली ओके. नो नीड टू आस्क मी, नो नीड टू आस्क एनीवन. जस्ट गो एंड मेक द चेंजेस, हैव अ बेसिक प्लान रेडी एंड जस्ट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन. कोई टेंशन नहीं लेना. पेपर है, पढ़ाई करेंगे, पेपर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है? बस कहीं पे जाके देना है, अभी घर पे पढ़ रहे हो, बस यही फर्क है. तो रिलैक्स. एक्सटर्नल टैक्स सारे के सारे हटा दो. CA फाइनल, रैंक, ICA कुछ नहीं है. पेपर है, पढ़ाई करिए, 12वीं 10वीं जैसा किया है ये भी करके दिखाएंगे. राइट? ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. उसके बाद भी आपके लिए कुछ ना कुछ चीजें लेके आता रहूंगा. नाउ लेट्स डील विद अवर ग्रुप 1 स्टूडेंट्स. फिर ग्रुप 2 के बारे में बात करेंगे. तो सिंगल ग्रुप वाले आ जाओ. ग्रुप 1 वालों के लिए मैंने ऐसा प्लान नहीं बनाया. रीजन क्या है बताता हूं. कंपैरेटिवली इट इज इजी टू हैंडल 4 सब्जेक्ट्स, लेकिन स्टिल मैंने ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाया. चारों में से ना 2 बड़े सिमिलर सब्जेक्ट है और 2 बड़े अलग, मतलब अलग वे में बट सिमिलर सब्जेक्ट्स है. तो FR एंड SFM अपने आप में वेरी सिमिलर, ऑडिट एंड लॉ अपने आप में वेरी सिमिलर, थियोरेटिकल. राइट? तो मैं इसके अंदर आपको 8 to 9 आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल बी एबल टू मेक अ क्रिस्टल क्लियर स्टडी प्लान. Okay, let's start with the updates. So FR 14th, SFM 17th. Again SFM में you have 2 days, so not a very a difficult situation. Comparatively आपके easy situation है कि 4 ही सब्जेक्ट है, 2 दिन मिल रहे ऊपर से, and audit 19th and law 21st. So let's understand. FR and SFM
यू हैव टू गिव डेली 3 आवर्स प्रैक्टिस। एफआर और एसएफएम तो हमारे सर चलते रहेंगे डेली। मेरे एक एग्जाम के पहले 12 तारीख तक आपको डेली एफआर एसएफएम करने हैं। रीजन, फर्स्ट 2 सब्जेक्ट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी प्रैक्टिकल विद वेरी वेरी स्कोरिंग। तो 90 प्लस का एम लेके चलेंगे हम इसके। क्लियर? डोंट लेट इवन अ सिंगल डे पास बाय without touching these 2 subjects. That is my advice and that is something I have followed very very religiously. ठीक है? तो प्लान में इसको इंकॉर्पोरेट करना है कि डेली सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे एसएफएम। दोपहर में सर क्या करें? लॉ, पहले लॉ पकड़नी है। तो पिक लॉ फर्स्ट इन बिटवीन एफआर इन मॉर्निंग एंड एसएफएम इन इवनिंग एंड देन रिप्लेस कर लेना। इसको डी नहीं है, आप बोलोगे सर की ग्रामर खराब है, तो रिप्लेस इट विथ ऑडिट एंड कीप इन टच स्ट्रेटेजी विथ लॉ। मतलब पहला 1 महीना मे बी 15 फेब से मार्च एंड भी आप ले लो, तो जैसे भी आपको कोशिश करनी है कि एफआर एसएफएम तो चलता रहेगा, एफआर एसएफएम में तो चलता रहेगा। दोपहर के टाइम आपको 2-3 घंटे लॉ उठानी है, उसको खत्म करनी है। ठीक है? लॉ के लिए यू कैन कंसिडर अवर बैच ऑल्सो, 73 आवर्स में यू आर गेटिंग द कवरेज। तो जैसे भी आपको बस लॉ खत्म करनी है एंड लॉ को रिप्लेस कर लेना है ऑडिट से। एफआर एसएफएम चलता रहेगा। ठीक है? जब ऑडिट को पकड़ोगे ना तो लॉ को पूरा इग्नोर मत कर देना। कीप इन टच स्ट्रेटेजी विथ लॉ के साथ थोड़ा थोड़ा टच मेंटेन करते हुए चलो। कुछ सेक्शंस रिवाइज कर लो, कोई मार्क्ड पोर्शंस है कि ये मेरे लिए मुश्किल बनते हैं या मेरे को डायरेक्टर्स में दिक्कत आती है, बस रीड करना है, कुछ पढ़ाई नहीं करनी, जस्ट कीप इन टच कि उसको रीड करते रहना है। क्लियर? नेक्स्ट, ट्राई करना योर फर्स्ट टाइमलाइन दैट योर फर्स्ट एग्जॉस्टिव रिविजन शुड बी कंप्लीटेड बाय 10th अप्रैल। 10th अप्रैल तक आपको एक पहली रिविजन खत्म करनी है। इफ यू वांट, प्लीज गिव one time based exam at the end of your first exhaustive revision. It will take 2 days. So 2 papers, 2 subjects in 1 day, 2 papers of each subject in 1 day. So it will take 2 days to complete the 4 subjects. And by the end of 12th April, approximately 12th April तक you will have a fair idea of where do I stand. उसके बाद you have to practice, ये general guideline है, you have to practice keep in touch strategy for the subject you may not be doing during a particular period to have that psychological comfort. And for FR and SFM, I'm again repeating, it's my humble advice, please try to do FR SFM on a daily basis. You can alternate with audit and law. Next, whenever you start with the second revision, it should be highly focused towards marked portions and should be completed by 30th April. Please don't try to give much time for 2nd April because at the end you need to have an understanding of how to revise syllabus in less and less time. So again, your focus will be on marked portions, marked concepts, marked questions. Okay, so please try to focus and complete your second revision by 30th of April. By 30th of April. Clear? आगे चलते हैं। 30 अप्रैल के बाद हमारा जो मई का महीना स्टार्ट हो रहा है, उसमें यू हैव टू गिव उससे पहले 1 more टाइम बेस्ड एग्जाम आफ्टर सेकेंड रिवीजन, मे बी बिटवीन 1st to 4th मई। ऑब्वियसली 4-5 दिन ज्यादा ही दे रहा हूं। उसके बाद जो आपका 13 मई तक टाइम रहेगा, लास्ट 10 डेज, एफआर डेली 3 घंटे करना है और एसएफएम भी आप कर सकते हो, बट अगेन यू हैव 2 डेज, तो आप छोड़ भी सकते हो, लॉ उठा सकते हो। सो बैलेंस एज पर नीड। इसमें इसीलिए आपको ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि सर सिंपल प्लान बनाना है। एफआर एसएफएम डेली चलता रहेगा, एफआर एसएफएम डेली चलता रहेगा। दोपहर में पहले लॉ पिक होएगा, फिर ऑडिट पिक होएगा जब लॉ खत्म हो जाएगा। पहली रिवीजन कब तक खत्म करनी है? पहली रिवीजन खत्म करनी है 10th अप्रैल तक। दूसरी रिवीजन कब तक खत्म करनी है? 30 अप्रैल तक। मई में 13 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर रिवीजन पेपर्स करके आगे बढ़ना है। अच्छा, आरटीपी सर आपने इसमें नहीं इंक्लूड करी। आरटीपी हर एक पढ़ाई के साथ भी आप कर सकते हो, एंड में भी कर सकते हो, नॉट अ बिग इशू। क्लियर? ओके, तो ग्रुप 1 वाले भी आप टाटा बाय बाय हो जाओ। लेट्स टॉक अबाउट ग्रुप 2। इसके अंदर भी बहुत डिटेल प्लान की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको स्टिल एक बना के दिया है ऑफ हाउ यू कैन सिलेक्ट द टाइमिंग्स। तो एससीएमपी का पेपर रहेगा, इलेक्टिव का पेपर रहेगा, डीटी एंड आईडीटी। डीटी सबसे हेवी वेट है इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। एंड इलेक्टिव आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बिकॉज इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो 15 फेब से 15 मार्च आपको 29 डेज का टाइम मिल रहा है, इन विच यू हैव टू फोकस ऑन 3 सब्जेक्ट्स, डीटी, SCMPE एंड इलेक्टिव। माय मेन फोकस विल बी डीटी, 4 आवर्स इन द मॉर्निंग, दोपहर में 1 घंटा इलेक्टिव, जो आपको 29 डेज नहीं लगेंगे, मे बी 15 दिन ही लगेंगे, तो उसका 1 घंटा ट्रांसफर कर देना SCMPE या फिर डीटी में। ठीक है, तो आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ टाइम फॉर डीटी। SCMPE 2 घंटे या 2.5 घंटे, 3 घंटे जैसे भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 1 hour यू हैव टू कीप इन टच स्ट्रेटेजी विद आईडीटी। सर व्हाट डू मीन बाय कीप इन टच स्ट्रेटेजी? सर सिंपल है कि जब आप 3 सब्जेक्ट कर रहे हो, दिमाग कह सकता है यार एक महीने के एंड में आईडीटी तो मैं भूल ही गया, पता नहीं क्लास में क्या किया था। आईटीसी जैसे टॉपिक है, रजिस्ट्रेशन का टॉपिक हो गया, वॉट एवर यू फील आर द
बॉटल नेक एरियाज फॉर यू, उसको सिर्फ 1 घंटा ऐसे रिवाइज कर लिया। 1 घंटा क्या, आप आधा घंटा भी दे सकते हो अभी स्टार्ट में, तो आप आधा घंटा भी दे सकते हो। चलो थोड़ा सा आईडीटी देख लिया, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था क्या क्या नहीं था, ऐसे करके यू कैन गिव सम टाइम टू इट, राइट। तो व्हाट आर द डिलीवरेबल्स ऑन 15 मार्च? 15 मार्च तक आपका डीटी डन, क्योंकि 4-4 घंटे दे रहा हूं यार, 30 दिन तो होना ही चाहिए। एससीएमपी डन, इलेक्टिव डन, ठीक है। उसके बाद 3 दिन आपको दे रहा हूं मैं, एक एक पेपर देना है आपको। हालांकि 3 दिन मैंने ज्यादा ही दिया है, या आप इसको 1.5 दिन में भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत कुछ रहता है तो उसको रिवाइज करके एक दिन में एक एक पेपर दे देना। उससे एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि भैया इन 3 सब्जेक्ट में वेयर डू आई स्टैंड, क्लियर। उसके बाद आपको 13 डेज दे रहा हूं, 19 मार्च से 31 मार्च, जिसके अंदर मेन फोकस आईडीटी रहेगा। तो आईडीटी आपको 4 घंटे देना है, और उसके एंड में आपको एक टाइम बेस्ड पेपर भी देना है, जस्ट लाइक अबाउ 3 सब्जेक्ट्स, जस्ट लाइक अबाउ 3 सब्जेक्ट्स। उसके बाद डीटी मैंने अगेन आपको 2 घंटे दिया है, बिकॉज आई फील दैट यू शुड नॉट लेट अ सिंगल डे पास वेयर यू डोंट टच डीटी। डीटी बहुत हेवी वेट है और बहुत स्कोरिंग है, तो हम इसमें भी डेली 2 घंटा डीटी करेंगे। इन 6 घंटे को छोड़ के 1 घंटा कीप इन टच स्ट्रेटेजी लगाएंगे। किसके साथ? आप इलेक्टिव के साथ लगा लो, एससीएमपी के साथ लगा लो। तो सर आप इसके अंदर कह रहे हो that you have to study for only 7 hours. No, I'm not saying that. But if you feel कि हाँ इतने इससे काम हो सकता है, तो क्यों अननेसेसरी प्रेशर लेना है। लेकिन अगर लग रहा है नहीं भाई डीटी तो मेरा बहुत ही अंडर प्रिपेयर्ड है, तो इसको भी 3-4 घंटे कर लो, हो गया आपका 9 घंटे का टाइम पीरियड, क्लियर है। तो कोई भी अननेसेसरी टैग्स नहीं लगाने कि मुझे 12 घंटे पढ़ना है, मुझे 13 घंटे पढ़ना है, डज नॉट मैटर। आगे, व्हाट आर माय डिलीवरेबल्स ऑन 31 मार्च? ऑल सब्जेक्ट्स आर डन वंस along with a time based paper, along with a टाइम बेस्ड पेपर, ठीक है। तो एक पेपर भी दे दिया है। उसके बाद मैं आपको 10 दिन दे रहा हूं, जिसके अंदर एक बफर दिया है। जो जो ऊपर वालों में से नहीं हो पाया, किसी का पेपर रह गया, किसी के सब्जेक्ट कोई चैप्टर रह गया, उसको खत्म करो। तो सर 10 अप्रैल के एंड में एक्चुअल में मेरे सारे सब्जेक्ट एक बार अच्छे से रिवाइज्ड है, along with one time based paper. Then I'm giving you 15 days from 11 to 25th April, in which you have to practice SCMP on a daily basis for 2 hours with a time based paper in the end. Sir, why are you keeping this subject different from others? Because SCMP is your first exam, तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। But for balance you have around 1.5 days. So here we will try to implicate and to replicate that kind of a model in which we will try to revise one subject in 4 days. वहां पे तो 1.5 दिन मिलने वाला है, यहाँ पे 4 दिन फिर भी दे रहा हूं। तो बैलेंस 3 सब्जेक्ट यू हैव टू रिवाइज द सब्जेक्ट एंड गिव 1 पेपर इन 4 डेज, ठीक है। सो टोटल 3 सब्जेक्ट्स, 4 days per subject, you will have 12 days. You will need 12 days, but still I'm giving you 15. तो एक दिन ऊपर नीचे करके इसको कोशिश करना कि हाँ 4-5 दिन में सब्जेक्ट को समअप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, right? So you can learn from those weaknesses that you feel कि okay, when I tried to cover the syllabus in 4 days, these were my weakness areas that I will address in 1.5 days preparation. Clear? Okay. What are my deliverables as on 25th April? All the subjects are properly done at least twice. ऊपर भी एक बार हो गया, इस वाले में भी एक बार हो गया, मैंने पेपर भी दे दिया, ऊपर भी दे दिया, यहाँ पे भी एक एक पेपर दे दिया। सो आई हैव गॉट अ फेयर आइडिया ऑफ वेयर डू आई स्टैंड इन 4 सब्जेक्ट्स। उसके बाद फिर 21 दिन 15 मई तक 21 दिन आपको मिल रहे हैं, दोबारा एक रिवीजन करो, दोबारा पेपर करने करो, आरटीपी उठाओ, पुराने पेपर उठाओ, दिस विल बी योर 3rd रिवीजन। और लास्ट के टाइम पीरियड में मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि प्लीज ट्राई टू कवर आईडीटी एक बार, क्योंकि आपका लास्ट पेपर बनता है, ठीक है। तो डीटी के बाद थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, सो ट्राई टू कवर इन मे बी अराउंड 9 to 15 में आप इसको कवर करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। 9th मई टू 15th में, ठीक है, क्योंकि अपना आगे 23 मई से पेपर स्टार्ट है, तो ये लास्ट में आप एक आईडीटी उठा सकते हो। उसके बाद जो लास्ट का टाइम पीरियड आएगा ये 7-8 दिन 15 मई से 22 में, इसमें आपको मेन फोकस डीटी एंड एससीएमपी पे करना है। इलेक्टिव में दिक्कत आएगी नहीं, आईडीटी अभी भी रिवाइज हुआ है। तो विद दैट 3 to 4 रिविजन्स आर पॉसिबल, बिकॉज जो ग्रुप 1 चल रहा होता है वो भी आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो आई डोंट थिंक इसके अंदर कोई प्लानिंग में और कोई दिक्कत आएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट these were basically the crux of all the discussion, and I hope that this video and this discussion helped you plan in a better manner. Obviously it is not possible for me to give one study plan that suits all, hence you need to make certain amendments to your study plan and make a plan which is suitable to you, a personalized manner में। clear है ये चीज? So this was all for this video. Apart from that, yes, 2 important updates मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल यू कैन ज्वाइन, डेली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज आएंगे, जिसके अंदर मेरा एम है कि ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो ताकि आप सीखो पेपर पे जाने से पहले, एंड आई विल एंश्योर दैट यू लुक टू लॉ डिफरेंटली।
डिटेलिंग में जाएंगे, कंसेप्चुअली चीजें पकड़ेंगे. एंड ऑब्वियसली फॉर ई बुक्स एंड क्लासेस यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.swalimbeclasses.com. नीचे भी विजिबल होगा, तो वो भी आप चेक कर सकते हो. फॉर क्लासेस हार्ड कॉपी लिमिटेड है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बाद में हमें बहुत जनों को मना करना पड़ता है. तो हार्ड कॉपी लिमिटेड है, यू कैन रजिस्टर फॉर इट. ई बुक्स आप कभी भी ले सकते हो विद ई बुक्स बैच, राइट? सो दिस वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन. आई सिंसियरली होप कि दिस डिस्कशन हेल्प्ड यू टुवर्ड्स योर प्लानिंग पर्पस. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय. एंड कुछ भी और जरूरत लगी मुझे कुछ रिवीजन वगैरह की कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के लिए, तो आई विल इंश्योर दैट इट इज अपलोडेड ऑन यूट्यूब. ओके, टेक केयर, बाय.